As you have already know that we discussed electrochemical machining, and you have a very good interest in that, in the way that you ask so many questions and very good questions. So as I have told you that we will discuss it further in our next lecture. So today we will particularly focus on electrochemical machining in the way that how basically current will be adjusted to gain particular amount of material removal rate. Um, Electrochemical machining, if somebody haven't gone through the previous lecture or were not in the class, so basically electrochemical machining and uh, is basically a process in which we pass current from two electrodes, in which one electrode, which is basically a tool, is negatively charged, that is we will make that a cathode, and on the other hand the work material will work as an anode. We charge it positively. So the first restriction, or you can say its limitation, is that it is only feasible for materials, or for machining of materials that are electrical conductor of electricity, right? So on the other hand, if we see this process, whatever may be the hardness of the material, or whatever may be the strength of the material, you don't need machining in conventional way. That is why hardness doesn't matter in this process, right? So that is why its importance is very high. And you can see that when we make one electrode as a tool and the other as a work material, so the main point here is that the tool will be of the same shape of the work material we require. Or you can say, if you want a rectangular hole in a workpiece, then you will use same dimension hole in the tool, right? So how that will work, we will study here. That electrode tool, that is cathode charge tool, usually made of copper, brass, or stainless steel, is designed to possess approximately the inverse of the desired final shape of the पार्ट. वो इन्वर्स है जो हमें फाइनल शेप ऑफ द पार्ट, यानी वो उतने ही पॉजिटिव आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उन्हीं लोकेशन पे अट्रैक्ट करेगा, और रिजल्ट में हमारे पास जो है वो मटेरियल उसी अमाउंट में रिमूव होगा, ठीक है? एंड अलाउंस इन द टूल साइज मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द गैप, लेकिन टूल को जो है वो लिटिल बिट शॉर्टर बनाया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा, क्योंकि वो एक जो गैप दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है वो भी वर्क मटेरियल में जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो उसको एकोमोडेट करने के लिए टूल साइज को अलाउंस दिया जाता है। टू अकम्प्लिश मेटल रिमूवल, बेसिकली मेटल रिमूवल होती कैसे है वो हम देख रहे हैं कि द इलेक्ट्रोड इज फेड इनटू द वर्क एट अ रेट इक्वल टू द रेट ऑफ मेटल रिमूवल फ्रॉम द वर्क। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज में एक सर्कुलर होल करना है, तो आपने उसका सरफेस एरिया वही बना दिया जो कि आप होल का सरफेस एरिया, ठीक है, और उसकी लेंथ वही बना दी जो उसकी थिकनेस है, ठीक हो गया? इस तरह करके हमने शेप की ज्योमेट्री क्रिएट कर ली। अब हम उस गैप को, जो कि बहुत माइन्यूट होता है, अभी आपको बताएंगे कि कितना होता है, उस गैप को एकोमोडेट करके वो इलेक्ट्रोड डाउनवर्ड मूव करता जाएगा। और इसी तरह जिस तरह हमारी कन्वेंशनल मशीनिंग में फीड रेट डिसाइड किया जाता है, यानी फीड उसको दी जाती है कि टर्निंग हो रही है और फिर टूल ने थोड़ा सा आगे मूव करना है, फिर टर्निंग हो रही है, तो सेम ऑपरेशन इसमें भी है कि हमें अगर हम सबसे सिंपल सिनारियो रखें कि हम एक होल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये डाउनवर्ड मूवमेंट देनी पड़ेगी टूल की, और वो वहीं पर इजीली एग्जैक्टली वो उन्हीं लोकेशन के ऊपर मटेरियल को रिमूव करेगा जो उनसे नियरेस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट को वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो दैट इज वाई वो डाउनवर्ड जाता जाएगा, तो
फीड भी इसमें आएगी, मटेरियल रिमूवल रेट भी आएगा, और वही जो चीज़ें आप पैरामीटर्स पिछले अपने उसमें पढ़ते रहे हैं वही यहाँ पे भी यूज होंगे। मेटल रिमूवल रेट इज डिटर्मिन्ड बाय Faraday's first law, which states that the amount of chemical change produced by an electrical current, that is the amount of metal dissolved, is proportional to the quantity of electricity passed. जितना केमिकल चेंज अगर होगा वो डिपेंड करेगा जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, और केमिकल चेंज का मतलब है मटेरियल रिमूवल जितना होगा, यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे उतना ही मेटल रिमूव होगा। ये फेराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ जो है वो स्टेट करता है। ठीक है, अब हम जो है वो अगर आए मेटल रिमूवल रेट पे, यही फेराडेज लॉ जो है वो यहाँ पर स्टेट है कि फॉर एग्जांपल V जो है वो वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड है, V यहाँ पर वॉल्यूम है ऑफ मेटल रिमूव्ड इन मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, C एक कांस्टेंट है called the specific removal rate that depends on atomic weight, valence and density of the work material। इधर जो C है ये डिपेंड कर रहा है कि वर्क मटेरियल की अट्रैक्टिव फोर्स क्या है कैथोड की तरफ। ठीक है, क्योंकि कैथोड तो हमने बता दिया कि ब्रास कॉपर या इनका यूज होगा, तो वर्क मटेरियल की अट्रैक्टिवनेस क्या है, कितने टाइम में कितना, उस पर डिपेंड कर रहा है। सी उसके एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रहा है वर्क मटेरियल के, और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इसका जो यूनिट है वो मिलीमीटर क्यूब एम्पियर सेकेंड है। आई इधर करंट है और टी जो है वो टाइम है। ठीक है, जितना करंट पास हो रहा है जितना टाइम लग रहा है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ फेराडेज लॉ ये कह रहा है कि वॉल्यूम उतना ही रिमूव होगा मटेरियल का जितना मैं करंट पास करूंगा, और इस पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम अगर देखें तो इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है आई के बजाय, फॉर एग्जांपल हमें अब पता है कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ ये स्टेट करता है कि आई इज इक्वल्स टू V ओवर आर, या V इज इक्वल्स टू आई आर। ये तो फार्मूला सबको पता होगा इलेक्ट्रिकल में, इवन एसएससी में आपने पढ़ा है। V इज इक्वल्स टू आई आर, जब V जो है वो वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। क्योंकि हमने यहाँ पर V वॉल्यूम के लिए यूज कर लिया, तो इंस्टेड के हम V यूज करें, हम यहाँ पर यूज करें हैं E वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो ये V इज इक्वल्स टू आई आर ही फार्मूला है, V के बजाय हम E यूज करें। ठीक है, ई वोल्टेज है, आर रेजिस्टेंस है। अब आर जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ऑपरेशन की कंडीशंस हैं उन पे डिपेंड कर रही है। जी आर ए, जिसमें जी जो है वो गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। आर जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें से करंट पास होते हुए कितनी रेजिस्टिविटी वो प्रोवाइड करता है उस पे। और रेसिप्रोकल है, यानी एरिया के ऑपोजिट है। एरिया बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, एरिया नैरो होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ये एरिया फ्रंटल एरिया है, जिसको हम ये कहते हैं कि सरफेस एरिया बिटवीन वर्क एंड टूल इन द वर्किंग फ्रंटल गैप। फॉर एग्जांपल आप अगर लेते हैं कि आपने, क्योंकि आपको बताया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ठीक है ड्रिलिंग हमने बना दी कन्वेंशनल और वो सर्कुलर होल क्रिएट कर लेती है, बट इफ वी वांट टू मेक अ स्क्वायर होल, इज देयर एनी मशीन दैट कैन मेक अ स्क्वायर होल और rectangular hole? No, but in this case you can make a rectangular hole, and what you should do that you make a electrode of that dimension. For example आपने कह दिया कि एक सरफेस एरिया 30x10 का एक बना लो रेक्टेंगुलर होल, तो यही 30x10 यानी 300 सरफेस एरिया फ्रंटल एरिया जो है, और डेप्थ उसकी नहीं ली जाएगी क्योंकि एरिया तो उसमें लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है। आई क्योंकि ई बाय आर के इक्वल था, अगर आर जी आर बाय ए के इक्वल है तो आई यहाँ पर ई ए बाय जी आर। ठीक है, यहाँ पर आर क्योंकि जी आर बाय ए के इक्वल है, ई बाय आर है, तो इसको ऑपोजिट करके जो चीज आ रही है वो यहाँ आ जाएगी। आई हमने इसमें ओम्स लॉ के थ्रू कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर वॉल्यूम जो रिमूव हुआ है, अगर हम उसमें आई की जगह जो भी हमने निकाला है वो पुट करते हैं। ठीक है, अगर हम आई की जगह वो पुट करते हैं जो हमने अभी निकाला है, तो ई ए बाय जी आर, तो ये वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल रिमूव होगा। ठीक है,
it is convenient to convert this equation into an expression for feed rate. हम तो हमेशा feed rate में बात करते हैं कि कितने जो है वो कन्वर्ट होगा, कितना मीटर पर सेकंड जो है वो मैंने इसको डेप्थ पे लेके जाना है। अगर मैंने एक डेप्थ होल करना है तो वो बताओ ना। तो इस वॉल्यूम को मैंने अब फीड रेट में कन्वर्ट करना है, तो फीड रेट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ये सिर्फ वॉल्यूम है, ठीक है। और मैंने इसको अब कन्वर्ट करना है मिलीमीटर पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगी कि इस इक्वेशन को मैं एरिया से डिवाइड करूंगी, ये मिलीमीटर क्यूब है तो एरिया से डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा मिलीमीटर, और टाइम से भी डिवाइड करूंगी तो पर सेकंड में आ जाएगा। तो सिंपली ये v डिवाइड बाय AT फीड रेट बनेगी, और यहाँ से AT को क्रॉस करें तो CE/GR फीड रेट आ गई। अब ये फीड रेट जो है वो मिलीमीटर पर सेकंड में है, यानी अब आपको बता रहा है कि इतने मिलीमीटर पर सेकंड फीड रेट दो तो ये इतना वॉल्यूम जो है वो स्पेसिफिक टाइम में जो है वो रिमूव हो जाएगा। लेट अस सब्स्टिट्यूट I by A इन प्लेस ऑफ E/GR। अब हमने यहाँ पीछे देखा है ना कि I by A जो है वो E/GR के इक्वल है, I/A E/GR के इक्वल है। तो उसने इसको और सिंपलर I और A, जो चीज़ें हमें पता है, E हमें कंफ्यूजन है कि शायद ना पता हो, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इतना कोई आइडिया नहीं है, G का अगर कोई आइडिया नहीं है, तो हम इसको I और A में कन्वर्ट कर दें। अब A वो फ्रंटल एरिया जो मैंने रिमूव करना है, I में जो करंट दे रही हूँ वो है, और C उस मटेरियल का कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे फीड रेट आ जाएगा A फ्रंटल एरिया F द इलेक्ट्रोड है। दिस इज प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द टूल इन द डायरेक्शन ऑफ द फीड इनटू द वर्क। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभी न्यूमेरिकल में भी बताती हूँ। वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक रिमूवल रेट जो है वो टेबल से आपको मिल जाएंगी। वी शुड नोट दैट दिस इक्वेशन, ये जो फीड रेट है ये 100% एफिशिएंसी ऑफ मेटल रिमूवल को शो कर रही है कि मैं जितना करंट पास कर रही हूँ वो पूरे का पूरा यूज होगा, 100% जो है वो मेटल को रिमूव करेगा। बट और बहुत सारे फैक्टर्स बीच में एडअप हो जाते हैं, और 90 to 100 तक ये टूल शेप से वेरी कर जाता है मटेरियल रिमूवल रेट, तो उसको भी हमने एकोमोडेट करना है। जी, यहाँ तो कोई आप लोगों का सवाल इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की साइंस में और इसकी मैथमेटिक्स में? नो मैम। ठीक है। सलमान खान। यस मैम। सलमान, मुझे बताओ ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ मैम, हम्म when a क्या पढ़ा current था is ऐसे passed through a तुमने? conductor, it is directly proportional to voltage applied across its ends. अच्छा, जितनी वोल्टेज इसके एंड्स पे अप्लाई की जाएगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? श्योर? कहीं से देख के पढ़ यस रहे हो? मैम। नो मैम, इस वक्त कहाँ से मुझे देखूं मैम? ऐसे लगता है जैसे ऑपोजिट बात नहीं है। मैं जितनी वोल्टेज बढ़ाती हूँ करंट शॉर्ट हो जाता है, और यही हम अपने यूपीएस वगैरह में नहीं कर रहे होते। मेरा ख्याल है, मैं कंफर्म करूंगी। मैम V इज इक्वल टू आई आर है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इज इक्वल टू आई आर है तो, लेकिन I इज इक्वल टू V ओवर R है ना। रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ना, रेजिस्टेंस का भी ताल्लुक है असल में। ठहरे, मैं कंफर्म आपको कर दूंगी, अगले लेक्चर में करती हूँ कंफर्म। रेजिस्टेंस और करंट का इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन है हाँ वोल्टेज और उसका हाँ, करंट ठीक का है, जो है वो ठीक है, डायरेक्ट। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हम जो है वो कुछ डिवाइसेस जो है वो हाई वोल्टेज के ऊपर बनाते हैं, और कुछ डिवाइसेस जो हैं वो हम अच्छा जी। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी यही जो ओम्स लॉ है ये यूज हुई, और फेराडेज लॉ क्या कह रहा था? जितना करंट पास करेंगे उतना मटेरियल रिमूवल होगा, उतना मटेरियल रिमूव होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली यही चीज हमने ये दोनों यूज की, और अब मेरे पास फीड रेट आ गया CI/A में,
ठीक है। फीड रेट जो है वो मीटर पर सेकंड में मटेरियल रिमूवल रेट को भी शो करता है। यही चीज़ हम अब यूज़ करें इस न्यूमेरिकल में। इस न्यूमेरिकल को देखें, एन ECM ऑपरेशन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल ऑपरेशन इज टू बी यूज टू कट अ होल इनटू अ प्लेट ऑफ एल्युमिनियम। अब सिंपली उसने मटेरियल बता दिया, वर्क मटेरियल बताया है ये कि एल्युमिनियम में होल क्रिएट करना है। ठीक है, एल्युमिनियम इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग उस पर हो सकती है। दैट इज 12 मिलीमीटर थिक, उसकी थिकनेस जो प्लेट की है वो 12 मिलीमीटर है। द होल हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जिसका वही 30 और 10 जो है वो 10 मिलीमीटर उसकी विड्थ और 30 जो है वो लेंथ ले लिया है। ठीक है, और द ECM ऑपरेशन विल बी अकम्प्लिश्ड एट अ करंट उसने दे दिया। तो एफिशिएंसी जो है वो 95% है, पूरी 100% पे वो वर्क नहीं करा। तो अब आपने फीड रेट निकालना है और टाइम निकालना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग थ्रू होल बनाने में यानी 12 मिलीमीटर की थिकनेस पे होल बनाने में कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले हमें पता है कि फीड रेट का फार्मूला है CI/A, मेरे पास I भी है, A जो है वो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगी। अब मुझे C चाहिए। C एल्युमिनियम के लिए ये टेबल उन्होंने दिया हुआ है C की वैल्यू के लिए, क्योंकि मिलीमीटर्स में मेरे पास वैल्यूज है तो मैं मिलीमीटर की C की वैल्यू भी उठाऊंगी। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए वो है 3.44 इंटू 10⁻²। तो 10⁻² है तो 2 जीरो और इधर शिफ्ट कर देंगे, 0.0344 मिलीमीटर क्यूब एम्पियर सेकेंड, 1200 और 300। तो इसके यूनिट जो है वो ओवरऑल आ जाएंगे मिलीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, फीड रेट जब मेरे पास आ गया तो अब वो कह रहा है कि 95% जो है वो इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, यानी अगर 0.1376 में इज्यूम कर रही हूँ कि फीड रेट मुझे चाहिए, तो एक्चुअल में मुझे इससे जो है वो ये फीड रेट उतना मटेरियल रिमूव नहीं कर सकेगा। ठीक है, मुझे और स्लो जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा, अदरवाइज मटेरियल कम रिमूव होगा और मैं आगे निकल जाऊंगी। ठीक है, तो दैट इज वाई मैं यहाँ पर इस एफिशिएंसी को डिवाइड कर रही हूँ 0.95। ठीक है, अगर 100% मटेरियल रिमूव हुआ तो फीड रेट ये ठीक है, बट क्योंकि 95% मटेरियल रिमूव हो रहा है दैट मीन्स कि मुझे एक लोकेशन के ऊपर अ लिटिल बिट टाइम ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो दैट इज वाई आई हैव डिवाइडेड 0.1376 डिवाइड बाय 0.95 और ये 1.1307 थोड़ा सा फीड रेट उसने कहा है कि स्लो कर दो, क्योंकि 95% मटेरियल अभी तक रिमूव हुआ होगा जो आपकी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक। ठीक है, ये समझ आ गई ना कि डिवाइड क्यों किया है? यस मैम। ठीक है, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई मैम किया है, multiply लेकिन शॉर्ट कैसे हो गया? हाँ, शॉर्ट मल्टीप्लाई किया, शॉर्ट कैसे हो गया? ठीक है, 95% ये शॉर्ट हो गया है, मीन्स के मुझे अब उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, फीड रेट स्लो देनी पड़ेगी पर यूनिट मिलीमीटर कम, 1 सेकेंड में कम मिलीमीटर वो पास करेगा, क्योंकि उसने पूरा मटेरियल अभी तक रिमूव नहीं किया होगा हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद अब उसने पूछा है टाइम, तो टाइम का आप टर्निंग में क्या फार्मूला यूज करते थे? टर्निंग वगैरह में टाइम का क्या फार्मूला था? बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे आजकल घर में, कौन बताएगा? फसी मजीद, फसी टाइम का क्या फार्मूला है? असजद, यस मैम। टाइम का क्या फार्मूला है टर्निंग में? फीड टर्निंग रेट में और हाँ हाँ, अच्छा ड्रिलिंग में मैम बता दो। हाँ, थिकनेस प्लस अलाउंस, कुछ इस किस्म का फार्मूला याद है टाइम का? मैम याद तो है, अभी वो एग्जैक्ट नहीं याद। बताओ ना क्या है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर फीड रेट मिलीमीटर पर सेकंड में गिवन हो यस और मैम। मैंने अब उसको टाइम में कन्वर्ट करना हो, तो मैं फीड रेट को किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाऊंगी? मैम आप उसको फीड रेट से डिवाइड करेंगी।
डिवाइड करेंगे, ठीक है, टाइम के फार्मूले में फीड रेट नीचे आता है क्योंकि मिलीमीटर पर सेकंड है, तो ये सेकंड उठ के ऊपर चला जाएगा। और किसी मिलीमीटर वाली लेंथ से तो क्या चीज टाइम बढ़ाती है? अगर मैं एल्युमिनियम की प्लेट को बना दूं 50 मिलीमीटर का इंस्टेड ऑफ जो इसने दी हुई है 12 मिलीमीटर, मुझे ज्यादा टाइम लगेगा मशीनिंग में कि कम? मैम समझ नहीं आई, जरा रिपीट करना। देखो ये थिकनेस है, थ्रू होल बनाना है 12 मिलीमीटर का, मैम ठीक हो गया। टाइम के और 50 कर दूं इसके बजाय, तो ज्यादा टाइम लगेगा कि कम? मैम अब टाइम थ्रू होल थिकनेस 50 ज्यादा हो, मिलीमीटर, हाँ 50 टाइम है तो। ज्यादा लगेगा। हाँ जी। तो फिर इसका ये मतलब है कि टाइम जो है वो डिपेंडेंट होता है थिकनेस के ऊपर, दैट इज वाई टाइम हमेशा ये लिया जाता है जो यहाँ पर शो हो रहा है, थिकनेस डिवाइड बाय फीड रेट, और यूनिट्स भी देख लें वो टाइम के बनते हैं, हो गया। ठीक है, थिकनेस यस। डिवाइड बाय फीड रेट, तो टाइम के यूनिट हमारे पास आ गए, और ये 1.53 मिनट में ये अपना पूरा टास्क, लेकिन आपने फीड रेट कौन सी वाली? जो मैम तो उसकी थी, प्लेट की थी। जो हमने करेक्ट करके लेकर आए हैं, ये वो वाली यूज करेंगे एफिशिएंसी के साथ। ठीक हो गया मैम। ठीक है, तो द preceding equation indicates the important process parameter for determining metal removal rate and feed rate in electrochemical machining. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं जरा कंफर्म करी थी कि ये ओम्स लॉ का कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है। अच्छा, गैप डिस्टेंस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड क्लोजली, यहाँ पर गैप डिस्टेंस का जो बताया आपको कि G बिकम टू लार्ज, अगर तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, और अगर ये दोनों कैथोड और इलेक्ट्रोड एक दूसरे को टच करेंगे तो केमिकल प्रोसेस होगा ही नहीं, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जो गैप रखा जाता है ना वो 0.75 मिलीमीटर से लेकर 0.075 से लेकर 0.75 तक रखा जाता है, और इस चीज़ को आप अपने इलेक्ट्रोड की लेंथ जब डेवलप कर रहे होते हैं तो उससे थोड़ा सा माइन्यूटली कम रखते हैं, यानी हम इसको अलाउंस कहेंगे, ठीक है, जो उसमें ऐड होगा, जैसा हम ड्रिलिंग में जो है वो उसका जो नीचे वाली एंगल बन रहा होता था उसके लिए जो अलाउंस रखते थे, सेम इज द केस है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसा हमने पहले पढ़ा था। अच्छा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हमने यहाँ एंड कर दिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? कैसे हमने फीड रेट और निकाला है टाइम, इसमें किसी को कोई मसला है तो पूछ लें। फार्मूला हमने सिंपली ये वाला यूज़ किया डायरेक्टली, अगर कुछ और पैरामीटर्स दिए हुए तो हो सकता है हमें कभी ये भी यूज़ करना पड़े या ये भी यूज़ करना पड़े, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो नॉन कन्वेंशनल या एडवांस्ड मशीनिंग प्रोसेस है वो है थर्मल एनर्जी प्रोसेसेस, ठीक है। थर्मल एनर्जी प्रोसेसेस जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हीटिंग क्रिएट करके तो किसी चीज़ को मशीन करते हैं, ठीक है। तो इसमें किया यही जाता है कि बहुत हाई लोकल टेम्परेचर जो है वो अचीव किए जा सकते हैं। अच्छा, अभी अगर आप जहन में वेल्डिंग लेके चले, आपने पढ़ ली इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, आपने पढ़ ली लेज़र बीम वेल्डिंग, आपने इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, उसके बाद प्लाज्मा वेल्डिंग, ये सारी वेल्डिंग जो है वो बेसिकली चीज़ को हाई टेम्परेचर अटेन करके मेल्ट करती हैं और जोड़ने का काम करती हैं। तो थर्मल एनर्जी प्रोसेस बेसिकली इसी का कंप्लीटली ऑपोजिट है कि इफ़ वी कैन join two metals, same way we can separate two metals from each other, ठीक है।
तो मटेरियल रिमूवल बिल्कुल वैसे ही जैसा वेल्डिंग होती है उसी का ऑपोजिट टास्क है कि हम हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। हाई लोकल टेम्परेचर क्रिएट होने की वजह से वहां पर जो है वो मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है और फिर हम उसमें किसी भी किस्म का एक कटर और बाजू का सिर्फ बम्बार्डमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन्स या लेजर बीम के थ्रू जो है वो हम कटिंग का प्रोसेस जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, मटेरियल रिमूव बाय फ्यूजन और वेपराइजेशन, वेपराइज हो जाता है मटेरियल और लोकल हाई टेम्परेचर जो है वो उसको कटिंग का बायस बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें अब जैसा कि वेल्डिंग में हमें पता है कि मटेरियल की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, माइक्रो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, तो सेम इज द प्रॉब्लम हेयर कि उसका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी और मेटलर्जिकल डैमेज भी न्यू वर्क सरफेस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं और ये इतनी नैरो जगह पे करता है कि हम कहते हैं कि हम बाद में उसको हीट ट्रीटमेंट करके मोस्टली इस किस्म के प्रोसेस के बाद मटेरियल को हीट ट्रीट करके दोबारा ओरिजिनल, यानी जब चीज़ बन जाती है ना तो उसको दोबारा हीट ट्रीटमेंट के सारे साइकिल से गुजारा जाता है और उसकी वो हार्डनेस और वो जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो वापस लेकर आया जाता है। इन सम केसेस रिजल्टिंग फिनिश इज सो पुअर दैट सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं कि उनकी बहुत फिनिश नहीं होती, सरफेस फिनिश नहीं अच्छी होती, तो उनको सरफेस फिनिश भी करना पड़ता है। अब इसमें जो है वो थर्मल एनर्जी प्रोसेस में, जी समझ आ गया ना ये क्या कॉन्सेप्ट है थर्मल एनर्जी प्रोसेस का? जी मैम। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखें कि बेसिकली ये चार प्रोसेस, अच्छे प्रोसेसेस हैं। एक है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वायर कटिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, कन्वेंशनल थर्मल कटिंग प्रोसेस। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वायर के साथ भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और कन्वेंशनल कुछ और भी थर्मल के प्रोसेस जो है वो वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो इससे ही आप नाम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मेटल रिमूवल बाय अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को अगर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाएगा, ठीक है, तो हम इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोसेस कहेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट स्पार्क्स की फॉर्म में हाई लोकलाइज टेम्परेचर क्रिएट करेगा, हाई इनफ के वो उसको मेल्ट कर ले और फिर लेकिन फिर अगेन वही मसला है कि कैन बी यूज्ड ओनली एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वर्क मटेरियल्स। और इसके दो मेन प्रोसेस हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। दोनों का फर्क देखें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसा कि आपने देखी थी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर एफिनिटी होने के बजाय पॉजिटिव और नेगेटिव की और मटेरियल इटसेल्फ रिमूव हो, ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर हाई जो है वो स्पार्क क्रिएट कर रहा है और ये स्पार्क जो है वो मटेरियल डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और अब आप ये देखेंगे ये यहाँ पर चिप की फॉर्म में मटेरियल रिमूव भी हो रहा है। ठीक है, इंस्टेड के इलेक्ट्रोलाइट में आइंस की फॉर्म में इसके पार्ट जाएं, चिप्स की फॉर्म में पार्ट निकल रहे हैं। ठीक है, मेटल रिमूव फ्रॉम कैविटीज, कैविटी से मेटल रिमूव हो रही है, यहाँ पर मटेरियल बार बार रिकास्ट हो रहा है, रिकास्ट मेटल हो रहा है, कैविटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से रिकास्ट, कास्टिंग आपको पता है कि मटेरियल को डिसॉल्व करते हैं लेकिन सारा मटेरियल रिमूव नहीं हुआ तो बाकी दोबारा सॉल्डिफाई होके कास्टिंग का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। ठीक है, अब जो ईडीएम ऑपरेशन है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉट ट्रेडिशनल प्रोसेस है। शेप ऑफ फिनिश्ड वर्क सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय अ शेप ऑफ इलेक्ट्रोड टूल, sparks occur across the small gap between tool and work और requires dielectric fluid। यहाँ पर dielectric fluid का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि spark create करने और जो है वो स्मॉल गैप के दरमियान ही ये मटेरियल को रिमूव करता है और फिनिश वर्क सरफेस की वही शेप होती है जो इलेक्ट्रोड टूल की होती है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा एटीएम ऑपरेशन यूज होता है। इसके अंदर वर्क मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होना चाहिए, हार्डनेस और स्ट्रेंथ की कोई वैल्यू नहीं है, वो बेशक ज़्यादा भी हो तो वो आर नॉट प्रॉब्लम इन ईडीएम। और मटेरियल रिमूवल जो है वो डिपेंड करता है उस चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट पे। पहले मटेरियल रिमूवल जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग थी उसमें मटेरियल रिमूवल
करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल रिमूवल उस चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। इन केस कि मैं कोई ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो उसमें मटेरियल ज़्यादा तेज़ी से रिमूव होगा। जिसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वो चीज़ बहुत देर में जाके डिजॉल्व होती है या वेपराइज होती है, तो उसमें मटेरियल रिमूवल रेट कम हो जाएगा, ठीक है। ईडीएम की एप्लीकेशन टूलिंग फॉर मैनी मैकेनिकल प्रोसेस, जितने टूल्स हैं, मोल्ड्स हैं, हर तरह की डाइज हैं, फोर्जिंग और हेडिंग डाइज, शीट मेटल, स्टैंपिंग डाइज, ये सारी ईडीएम ऑपरेशन से ही बनती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो कि हमें कन्वेंशनल प्रोसेस से अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ईडीएम एप्लीकेशन में हम डाई तो अपनी मर्जी के मटेरियल की बना सकते हैं जो कंडक्टर भी हो, तो दैट इज़ वाई हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। और प्रोडक्शन पार्ट्स जो हैं उनमें डेलिकेट पार्ट्स हैं जो रिजिड नॉट रिजिड इनफ है कि विथस्टैंड कर सकें कन्वेंशनल कटिंग प्रोसेस को, या होल ड्रिलिंग वेयर होल एक्सिस कहीं पर एक्यूट एंगल के ऊपर हो तो वो होल कैसे ड्रिल हो, और हार्ड या बहुत टफ मटेरियल्स हैं उनके लिए ईडीएम जो है वो यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वायर का ईडीएम बिल्कुल सेम चीज़ है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस वायर को शेप देने के बजाय इंस्टेड के हम इस कैथोड को शेप दें वर्क मटेरियल की, हम वो काम भी नहीं करते, इतना कॉम्प्लिकेटेड काम भी नहीं करते। ये और सिंपल है कि हमने एक वायर यूज़ कर लिया और इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। दोनों तरीके यूज़ किए जाते हैं। हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर स्पार्क क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, और हम इसको पूरे वर्क मटेरियल को सबमर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों सूरतों में ये वायर कट ईडीएम जो है वो यूज हो सकता है। और यहाँ पर इससे जो है वो इस रोल के थ्रू वायर जो है वो पास होती रहेगी, ये वायर डिजॉल्व भी होगी। जिस तरह वर्क मटेरियल डिजॉल्व होगा, वायर भी डिजॉल्व होगी साथ साथ, तो इसलिए हर दफा नई इनपुट वायर को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वायर कट ईडीएम इस तरह वर्क करिए। ऑपरेशन ऑफ वायर कट ईडीएम, वायर work is fed slowly past wire along desired cutting path like a band saw operation। band saw operation में मैकेनिकल है, इसमें थर्मल यूज हो रहा है। सीएनसी इसके ऊपर इजीली यूज हो सकती है, क्योंकि हम वायर को एक टिपिकल पाथ दे सकते हैं कि इसी के ऊपर मूव करो। while cutting, wire is continuously advanced between splice spool and take up spool to maintain a constant diameter, ठीक है। अदरवाइज डायमीटर रिड्यूस हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक रिक्वायर्ड यूजिंग नोजल्स डायरेक्टेड एट टूल वर्क इंटरफेस और सबमर्जिंग वर्क पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी क्लास को मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, तो अब आप लोगों को भी यहाँ तक पढ़ा दूँ ईबीएम, या नेक्स्ट क्लास में पढ़ लें? चलो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। नहीं, अभी तो 4:15 ही हुए ना। अच्छा मैं बोला टाइम से जो ये ईडीएम पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। 3:30 लेक्चर स्टार्ट हुए ना। बस ये लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, 3 ही स्लाइड है इसकी। ये भी सिंपल सा ही है, इसकी भी कैलकुलेशन की तरफ हम अभी फॉर द टाइमिंग नहीं जा रहे। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको फोकस किया जाएगा वर्क पीस पे, और वो जब बम्बार्ड होंगे तो वो वर्क पीस को कट करने का काम करेंगे। ये भी प्रोसेस क्योंकि मेल्टिंग के थ्रू ही किया जाता है और वेपराइजेशन के थ्रू ही किया जा सकता है, इसीलिए थर्मल प्रोसेस में इंक्लूड है। अब हाई वोल्टेज केबल है, यहाँ पर इसको ये नेगेटिवली चार्ज है, एनोड के थ्रू उनको डायरेक्ट किया गया है। यहाँ से वाल्व ओपन हो रहा है, यहाँ मैग्निफिकेशन लेंस लगे हुए, मैग्नेटिक लेंस, ठीक है। और ये डिफ्लेक्ट करते हैं वर्क पीस को बिल्कुल नैरो रेंज के ऊपर, और वर्क पीस के ऊपर ये बम्बार्ड होते हैं। ये इतनी हाई वेलोसिटी में होते हैं और इतने माइन्यूट होते हैं कि वर्क पीस की थर्मल एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इसको मेल्ट कर देते हैं। अब इस तरीके से इसमें वर्किंग होती है। इलेक्ट्रॉन बीम गन accelerates a continuous stream of electrons to about 75% of light speed। अब ये जो है लाइट की स्पीड से 75%, मतलब सिर्फ 25% कम जो स्पीड है उसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। बीम इज फोकस्ड थ्रू electromagnetic lens reducing diameter to be as small as 0.025।
देखेंगे अगर किसी चीज़ की इतनी एक्यूरेट मशीनिंग होगी कि वो 0.025 मिलीमीटर तक डायमीटर रिड्यूस कर ले, यानी अब आपका कटिंग टूल 0.025 मिलीमीटर स्मॉल हो गया। कोई भी फिजिकल कन्वेंशनल टूल इतना एजी नहीं हो सकता जितना ये वर्क इसकी इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है। On impinging work surface, kinetic energy of electron is converted to thermal energy of extremely high density, which melts or vaporizes material. जो electrons में basically kinetic energy है वो thermal energy में convert हो रही है और वो localized area में vaporization करके और melting करके चीज़ को remove कर रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बाकियों की निस्बत ये है कि ये हर किस्म के मटेरियल के ऊपर वर्क कर सकती है, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसे कोई चार्ज नहीं देना, ठीक है, दूसरे वर्क पीस को। ये माइक्रो मशीनिंग के लिए बहुत आइडियल है, यानी कहीं नॉच बारीक सी क्रिएट करनी हो, स्मॉल डायमीटर होल्स हैं, कटिंग स्लॉट्स बनानी है जिनकी इतनी कम, उनके लिए। फिर ड्रिलिंग होल्स विद वेरी हाई डेप्थ टू डायमीटर रेशो, कि डेप्थ बहुत ज़्यादा और डायमीटर उनका बहुत कम हो, तो उन केसेस में भी इंस्टेड के हम ड्रिल बिट को बहुत लंबा बनाएं और फिर उसमें डिफ्लेक्शंस क्रिएट हो, हम जो है वो 100:1 की होल्स जो हैं वो इन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की एप्लीकेशन से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।